تحریر اسدار چودھری۔ ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ، قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ 24 نومبر 1221 بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اعضاء ڈھیریوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہو بکا سے کان پڑی آوازیں سننا دشوار ہے۔ آسمان پر منڈلاتے گدھوں کے غول جگہ جگہ گھومتے بغیر سواروں کے گھوڑے کہ جن کے سوار قتل ہو چکے ہیں۔ بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان مارکا آج اس میدان میں پیش آیا ہے، مگر یہ مارکا ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میان سے باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جوان مرد اب بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے مگر اس کی وجہ دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سالار ہے۔ دفعتاً قریب موجود زخمیوں میں سے ایک عورت نکل کر چلتی ہے۔ جلال جلال تجھے اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان جو کئی سال سے تاتاریوں سے مد مقابل ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے یلغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا۔ دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسرے پیکار ہے۔ شاہی خیمہ سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے۔ یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں اور خیمے میں سلطان کی ازواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان شیشو پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تاتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم و ستم کی پہچان چنگیز خان کھڑا ہے اور وہ اس آخری مارکا آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمے سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے، وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی افواج سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تاتاری سپاہیوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں ہیں، سامنے کی طرف تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا جا رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چٹان پر موجود جلال الدین اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے، تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے، نیزہ ترکش اور کمان ساتھ لیتا ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز و تند موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے، دریا کا پانی یخ بستا ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر
तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। पानी की लहरें कभी उसे साहिल के करीब कर देती हैं, तो कभी दूर। लहरों से लड़ते हुए आखिरकार सुल्तान का घोड़ा दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। किनारे पर पहुंचकर सुल्तान अपना नेजा जमीन में गाड़ देता है और एक निगाह दूसरे किनारे पर मौजूद फातेह मगर बेबस चंगेज खान के चेहरे पर डालते हुए एक कहकहा बुलंद करता है। वो चंगेज खान जिसका नाम जुल्म सितम की इलामत है, वो जिस सुल्तान की मौत की तमन्ना लिए दरिया सिंध तक का सफर तय करके आया, वो सुल्तान उसकी आंखों में आंखें डाले कहकहा लगा रहा है। अजीब मंजर है। इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने का शौकीन चंगेज खान शायद इससे पहले इतना बेबस कभी ना हुआ हो। जंग जीत कर भी वो सुल्तान पर काबू पाने में नाकाम रहा है और सुल्तान दरिया के दूसरे किनारे पर बैठा कहकहा लगा रहा है। चंगेज खान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, बेटा हो तो ऐसा हो। वो बाप बड़ा खुशकिस्मत है कि जिसका बेटा इतना बहादुर है। सुल्तान जलालुद्दीन वो जवान मर्द है कि जिसने मंगोलिया से उठने वाले तातारी सैलाब के आगे बंद बांधने की कोशिश की। चंगेज खान की क़यादत में मुनज़्ज़म होने वाली तातारी वहशी कबाइल इस वक्त की आबादी दुनिया की तकरीबन आधे हिस्से को तबाह कर गए थे। सुल्तान ख्वारिज़्म की तारीख सिकंदर आजम से भी तकरीबन 1000 साल पुरानी है, यानी ख्वारिज़्म शाह का लक़ब सिकंदर आजम से भी तकरीबन 1000 बरस कदीम है। ज़माना इस्लाम में उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के सिपा सलार कतीबा बिन मुस्लिम बाहली के हाथों सल्तनत ख्वारिज़्म इस्लामी मुमलिकत में शामिल हुई। ख्वारिज़्म के हुक्मरान खिलाफत इस्लामिया के सूबेदार या गवर्नर की हैसियत रखते थे। उमवियों के बाद सल्तनत ख्वारिज़्म अब्बासियों की मातहत आ गई। अब्बासियों के दौरे ज़वाल में जब बगदाद का खलीफा कमजोर हो गया और मुमलिकत इस्लामिया के इलाके यके बाद दीगरे खुद मुख्तारी का ऐलान करने लगे, तो ख्वारिज़्म शाह ने भी अपनी खुद मुख्तार हैसियत का ऐलान कर दिया। बगदाद की मरकजियत से अलग हो जाने के बाद ख्वारिज़्म के हुक्मरान ने आसपास के इलाके फतह करना शुरू कर दिए। खिलाफत अब्बासिया के इलाके जो मरकज कमजोर होने के सबब आजाद हो गए थे, वो रफ्ता रफ्ता सल्तनत ख्वारिज़्म में शामिल होते गए। ख्वारिज़्म की सरहदें वसी होती चली गईं और आखिरकार 1200 में सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह के ख्वारिज़्म शाह बिन जाने के बाद सुल्तान ख्वारिज़्म की सरहदें तेजी से वसी होने लगी। मावरा अल नहर के अक्सर इलाके जिनमें समरकंद, बुखारा, कोकन, तरमेज, बल्ख, ताशकंद और फरगाना वगैरह शामिल थे और गंज की सल्तनत के अंदर आ गए। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह ने तरकान खता के खिलाफ अजीम कामयाबी हासिल की। इसी तरह सल्जूकी तुर्कों की मकबूजात भी ख्वारिज़्म शाह के पास आ गयीं। उधर अफगानिस्तान की गौरी सल्तनत का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस्माइली बातनी फिरका हसन बिन सबा के फिदाइयों के हाथों शहीद हो गया। इस तरह गौरी सल्तनत इंतशार का शिकार हो गई और फिर ख्वारिज़्म शाह ने अफगानिस्तान पर हमला करके गौरी सल्तनत पर फिर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों तक ख्वारिज़्म शाह की मुमलिकत पहुँच गई। इसी तरह मौजूदा सरहदी एतबार से सुल्तान ख्वारिज़्म अपने ज़माने अरूज में मौजूदा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान के कुछ हिस्से पर मोहित थी। अब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने खिलाफत अब्बासिया को भी अपनी सल्तनत का बाजगजार बनाना चाहा। उसने खलीफा बगदाद को पैगाम भेजा कि ख्वारिज़्म शाह का नाम जुमे के खुतबे में खलीफा के साथ शामिल किया जाए और खलीफा बगदाद सुल्तान ख्वारिज़्म का मती हो जाए। अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह के वालिद के जमाने में भी ख्वारिज़्म और बगदाद में लड़ाइयाँ हो चुकी थी, मगर अब ख्वारिज़्म शाह बगदाद को अपना मती करना चाहता था। इस तरह खलीफा बगदाद और ख्वारिज़्म शाह में शदीद नौयत के इख्तलाफात पैदा हो गए और तारीख ने देखा कि इन इख्तलाफात के नतीजे में मुमलिकत इस्लामिया के बड़े बड़े शहर तातारियों के हाथों बर्बाद हो गए। लाखों मुसलमानों का खून बहा, उनके सरों से खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। आखिरकार ना ख्वारिज़्म शाह बचा और ना ही खलीफा बगदाद, दोनों ही तातारियों के हाथों निस्तो नाबूद हो गए। कमजोर और नातवा खलीफा बगदाद को अपना रकीब और दुश्मन समझने वाला अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह शदीद गलती पर था। उसका असल दुश्मन तो सहराए गोबी में मुसलमानों का खून पीने की तैयारियों में मसरूफ था और मौके की तलाश में था। चीन के शुमाली इलाके में एक वसीओ अरीज सहरा वाक़े है जिसे सहराए गोबी कहा जाता है। उसका कुछ हिस्सा मंगोलिया में भी शामिल है। ज़माना कदीम में इस सहरा में वहशी और जंगजू कबाइल आबाद थे।
सेहरा की सख्ती से ये कबाइल बहुत सख्त मिजाज हो गए थे। आसपास के इलाकों में लूट मार और कत्लो गारत गरी करना उन्हें मरगूब था। चीन की तारीखी खताई सल्तनत के हुक्मरानों ने दीवारे चीन कायम करके उन्हें सेहरा तक महदूद कर दिया था। सेहरा गोबी में मंगोल कबीला सबसे ताकतवर था। 1154 में इस कबीले के सरदार के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम तेमुजन रखा गया। जवान होकर तेमुजन ने मंगोल कबीले के तमाम दुश्मनों को शिकस्त दे दी और एक तवील और सबर आजमा जिदोजहद के बाद गोबी और मंगोलिया के आवारा कबाइल को एक झंडे तले मुनज़्ज़म करते हुए उन सब का सरदार बन गया। सेहरा गोबी में वाहिद इलाका जो कुछ सरसब्ज और शहरी बूदोबाश लिए हुए था वो कराकरम के नाम से मशहूर था। तेमुजन ने तमाम कबाइल जिनमें मुगल, अगयूर वगैरह शामिल थे उनकी सरबराही और मरकजियत का ऐलान करते हुए कराकरम को अपना दारुल हुकूमत करार दिया और चंगेज खान का लक़ब इख्तियार किया। चंगेज खान ने तमाम इलाके फतह करने के बाद ख्वारिज़म शाह पर हमला किया। चंगेज खान का ख्वारिज़म शाह से मुआहिदा दोस्ती भी खलीफा नासिरुद्दीन के लिए बाइसे परेशानी था। दूसरी तरफ खलीफा का जबरदस्त जासूसी निजाम उसे बता रहा था कि हकीकत में चंगेज खान का मुआहिदा दोस्ती और तिजारत एक फरेब है और असल में चंगेज खान की नजरें सल्तनत ख्वारिज़म के शहर पर हैं। खलीफा नासिरुद्दीन के जासूसों ने उसे यकीन दिलाया कि अगर चंगेज खान को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि ख्वारिज़म पर हमला करने की सूरत में खिलाफत बगदाद गैर जानिबदार रहेगी तो वो ख्वारिज़म पर फौरन हमला कर देगा। और हकीकत भी यही थी कि चंगेज खान को मुसलमान इलाकों पर हमला आवर होने की सूरत में आलमे इस्लाम की तरफ से मुश्तरका मुजाहमत का शदीद खौफ लाहक था। इस पस मंजर में खलीफा बगदाद नासिरुद्दीन ने वो इकदाम उठाया जो उसके मनसब के शायाने शान हरगिज न था। ख्वारिज़म के सुल्तान से लाख खतरा सही मगर वो बहरहाल मुसलमान हुक्मरान था और इससे मामलात गुफ्तो शनीद से हल करना बेहतर था। मगर खलीफा बगदाद ने कराकरम एक सिफारती वफ्द रवाना किया और एक खलीफा पैगाम चंगेज खान को भिजवाया कि अगर वो ख्वारिज़म पर हमला आवर होगा तो बगदाद की खिलाफत इस ज़मन में गैर जानिबदार रहेगी। यानी खलीफा ने चंगेज खान को आलमे इस्लाम पर हमला आवर होने की दावत दी और इस बात की यकीन दहानी कराई कि बगदाद की खिलाफत जो आलमे इस्लाम का सियासी मरकज है इस सिलसिले में खामोश रहेगी। उधर खलीफा बगदाद साजिशों में मसरूफ अमल था। उधर ख्वारिज़म शाह की हमाकत ने उससे वो काम करवा दिया जिसने आलमे इस्लाम के वसी रकबे पर तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम कर दी। ख्वारिज़म शाह ने चंगेजी कासिद का कत्ल कर दिया। चंगेज खान को इस वाक़े की इतला हुई तो उसने अपना सिफारती वफ़द ख्वारिज़म शाह के दरिया में भेजा। चंगेज खान को इस वाक़े की इतला हुई तो उसने अपना सिफारती वफ़द ख्वारिज़म शाह के दरबार में भेजा। अपने खत में चंगेज खान ने सख्त एहतजाज करते हुए हाकिम इत्तरार जनाल खान की हवालगी का मुतालिबा कर दिया। मुतालिबा ना मानने की सूरत में जंग की खुली धमकी दी। ये धमकी सुनकर ख्वारिज़म शाह आपे से बाहर हो गया। इस तरह आलमे इस्लाम पर तातारियों की यलगार का आगाज हो गया और एक कासिद के कत्ल का बदला चंगेज खान ने 1 करोड़ मुसलमानों को कत्ल करके लिया। तातारियों की आलमे इस्लाम पर की जाने वाली ये यलगार तकरीबन 12 सालों पर मुहित है। चंद एक के सिवा आलमे इस्लाम के तकरीबन तमाम बड़े शहर उसकी लपेट में आए। मुसलमानों की लाशों के अंबार लगाए गए। 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बड़े बड़े आलमे दीन, मुवज्जिद, मुहद्दिस और मुख्तलिफ फनून के माहिर इसी सैलाब बालाखेज की रूह में बह गए। आलमे इस्लाम का आधे से ज्यादा रकबा इससे मुतासिर हुआ। इतनी बड़ी तबाही रूए जमीन पर इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी।